বন্ধুরা, আমরা যাচ্ছি ভিগু কমণ্ডলু আর ধুনিপানিতে। অপূর্ব সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, একেবারে নিস্তব্ধ, নিরালা। আর প্রকৃতি যেন এখানে খুশিতে ডগমগ হয়ে রয়েছে। চারিপাশটা দেখুন, ঠিক এই পর্যন্ত গাড়ি আসে। আমরা এই বাঙালি মহারাজের সাথে এই ভিগু কমণ্ডলু এবং ধুনিপানি দুটি জায়গায় প্রবেশ করছি। দেখুন কি সুন্দর গভীর অরণ্য। এই পাহাড়ের উঁচু থেকে আমরা নেমে যাচ্ছি। অপূর্ব সুন্দর এ দৃশ্য আপনাদের দেখাতে ইচ্ছা করলো। প্রকৃতির মাঝে কি প্রশান্তি, তা প্রকৃতির মাঝে না আসলে জানা যায় না। প্রত্যেকটি পাতা খসার শব্দও যেন শোনা যায়। পাখিরা দেখুন কাকলিতে ভরিয়ে রেখেছে। বন্ধুরা, আমরা গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছি। সরু পথ, আর চারিদিকে কোনো জনমানব নেই। আমরা দুজন চলেছি। দেখুন কি গভীর অরণ্য। ভৃগু ঋষি এখানেই সাধনা করেছিলেন, সেই কাহিনী আমরা শুনব। অনেক সাধুরাও আছেন যারা অদৃশ্যমান। দেখতে থাকুন, একেবারে অন্য স্বাদের একটি ভিডিও। আমরা সারা বছর আপনাদের যে রূপে ভিডিওগুলো উপস্থাপিত করি, তার থেকে একেবারে অন্য স্বাদের। গাছগুলো দেখুন মাথা উঁচু করে কিভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারিদিকে যেন উন্নত মাথায় গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখুন কতটা হাঁটতে হবে মহারাজ এখানে আমাদের? 1.5 কিলোমিটার এই পাহাড়ি অরণ্যের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে পৌঁছাতে হবে। মহারাজ, এই যে জঙ্গল, এখানে অনেক জঙ্গলের জানোয়াররাও তো রয়েছে। হ্যাঁ, এখানে আপনি হরিণ পাবেন, শেয়াল পাবেন, তারপরে আপনার বাঘ আছে, ভাল্লুক আছে, সবই পাবেন এখানে। কিন্তু কোনো মানুষের অনিষ্ট করে না? না, টুকটাক যেমন একটু আধটু তো হয়, হুম। সেটা এমন কিছু না। তবে ওরা যে যা নিজের মধ্যে থাকেন এবং জঙ্গলে বেশি ডেন ফরেস্টের মধ্যে ওরা চলে যায় আওয়াজ পেয়ে। তবে সাধু সন্ন্যাসী প্রচুর আছেন যারা অদৃশ্যমান, কিন্তু এখানে তারা কিন্তু সবসময় এখানে বিরাজ করছেন, তপস্যা করছেন। কারণ এটা তপভূমি নর্মদা, এখানেই তপ করার জায়গা। বাবা ভোলেনাথ নিজে যেহেতু এখানে তপস্যা করেছেন, এখানে এসে তপস্যা না করলে তার সিদ্ধিলাভ হয় না। ভারতবর্ষে যত রকমের যত বড়ই সাধু সন্ন্যাসী আছেন এখনও পর্যন্ত, সবাইকেই কিন্তু অমরকণ্টক আসতে হয়েছে এবং এখানে এসে তপস্যা করতে হয়েছে, তবে তার সিদ্ধিলাভ হয়েছে। বন্ধুরা, নিস্তব্ধতার শব্দ কেমন সেটি এই জায়গাতে এলে বোঝা যায়। কানগুলো অন্য রকমের অনুভূতিতে ভরে ওঠে। আমরা পৌঁছে গেছি ধুনিপানিতে। দেখুন এই পাহাড়ের মাঝে এই কুণ্ড, একেবারে কাঁচের মতো পরিষ্কার জলের কুণ্ড।
ধুনি পানি, কলকে ফুল এবং অনেক অনেক প্রজাতির ফরেস্টের গাছগুলোর সম্পূর্ণ পরিচয় আমাদের জানা নেই, তবে শুধুমাত্র এটাই বলা যায় এ অনুভব করার। এখানেও দেখুন আরেকটি ছোট্ট জলাশয়, হ্যাঁ দুটো। আমরা ধুনি পানির সম্পর্কে জানবো। এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা আছে না মহারাজ? দেখুন এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ধুনি পানির কুণ্ডে আমরা এই পতঙ্গগুলোকে দেখছি, জলের পোকা। আমাদের অঞ্চলে কিন্তু এই ধরনের জলের পোকা দেখা যায় না। এরা খুশিতে দলবদ্ধ হয়ে ঘুরছে। দেখুন জলের পোকাগুলোকে। আমরা এবারে এই ধুনি পানিতে যিনি রয়েছেন সেই মহারাজের কাছে শুনব ধুনি পানির মহত্ব। বন্ধুরা, হাজার হাজার বছর ধরে পাহাড়ের মাঝে এমন সুন্দর কুণ্ড, দেখুন বনের গাছের ছবি কাঁচের মতো, আয়নার মতো উঠেছে। আর এই কুণ্ডটির জলটি কেমন স্বচ্ছ দেখুন। পাশের কুণ্ডটির জলটি কিন্তু এত স্বচ্ছ নয়, একেবারে নিচ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, এত স্বচ্ছ জল। ঝিঝি পোকার আওয়াজ, এখানেও কিছু ওই জলের পোকাগুলোকে আমরা দেখছি। দেখুন শহরের কোলাহল থেকে বহু দূরে এমন শান্তি বিরাজমান। এখানকার মানুষ বলেন শকুন, সুকুন। কি মহারাজ শকুন বলে তো? হ্যাঁ, শকুন শকুন মানে শান্তি। শান্তি। বন্ধুরা, আমরা এখানে যেই মহারাজ রয়েছেন তার কাছে শুনবো। महाराज जी, आप यहाँ ही रहते हैं? जी अकेला रहते हैं? जी यहाँ तो कोई मोबाइल का कोई कनेक्शन नहीं है, जी लाइट भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ऐसा दुनिया से बाहर है ये जी जो अभी दुनिया चल रहा है। जैसा इंटरनेट नहीं है, मोबाइल भी नहीं रखते हैं, या तो कोई कनेक्शन भी नहीं है, जी नहीं है। इंटरनेट का कोई कनेक्शन नहीं। हम देख रहे थे कि मेरा मोबाइल में कोई टावर नहीं है, जी जीरो टावर दोनों जी सिम में यहाँ ही। धुनी पानी है ये, हम्म, मतलब यहाँ संत लोग विराजमान करते हैं। यहाँ धुनी पानी और भीरगु कमंडल में नेटवर्क ही नहीं रहते दोनों जगह। दोनों जगह ही। हाँ, यहाँ मतलब प्राकृतिक देन है ये, मतलब ऊपर जो भगवान जो हैं विराजमान करते हैं उनका ही देन है ये। तो इनके वजह से यहाँ पर टावर वावर नहीं मिलते, क्योंकि तपोस्थली है। तपोस्थली है, ये आज से पूरा बहुत- फॉरेस्ट एरिया है। हाँ फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन सरकार इसमें ध्यान दे तो बहुत कुछ बन सकता है ये। अच्छा, आप बोलिए कि ये जो ये जगह का जो महत्व है, जी। भृगु ऋषि यहाँ का यहाँ रहते थे ना, तपोभूमि है उनका, तपोभूमि। उन्होंने यहाँ तपस्या किए थे। जी जी तो ये धुनी पानी का क्या महत्व है? इसीलिए इनका नाम पड़ा धुनी और पानी। ये जैसे ये जल देख रहे हैं, कुंड है, त्रिवेणी मैया है, ये पहले शंकर जी का धुना था। ये शंकर जी धुना था, तब भृगु ऋषि जी को आवाहन करके बुलाया, तो फिर यहाँ त्रिवेणी मैया उद्गम हुए, उधर नर्मदा मैया उद्गम हुए। हम्म, तो फिर यहाँ से वो शंकर जी का त्रिशूल नहीं धुले, यहाँ पर किसी राक्षस को मार के आए हुए थे। तो फिर भृगु ऋषि जी फिर बोले नहीं प्रभु, अब यहाँ नहीं हो सकते, रुद्र गंगा चले जाइए। यहाँ से फिर रुद्र गंगा गए, और वहाँ से रुद्र गंगा से त्रिशूल धोते धोते पता नहीं भगवान भोलेनाथ वहीं से शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ गए अंदर। ये माइकल पर्वत है पूरा, यहाँ माइकल पर्वत में पारस पत्थर भी पाया जाता है। अच्छा, जी, ये आज से मतलब 1000 साल पहले
जब यहाँ कुंड उन सब भीरगु ऋषि जी उत्पन्न किए, पहले तो उनको पानी वानी पीने के लिए बड़ा दिक्कत होता था यहाँ पर भीरगु ऋषि जी को। तो फिर यहाँ से चीलम पानी जाते थे, नीचे चीलम पानी है, यहीं का जो झरना है पूरा झरना बन के गिर रहा है जल। तो फिर उन्होंने ये तपस्या से ये तैयार किए। तपस्या से तैयार किए। फिर यहाँ उनका ये जल, ये कुंड उनका हमेशा यहाँ पूजा पाठ होते रहे और वहाँ धुना में भोग वोग लगते रहे। अच्छा, धुना मतलब जो आग आग जल रहा है ना, तो वो दिखाइए, वो कितना दिन से जल रहा है? ये तो बहुत पुराना है बाबा, उन्हीं के जमाने का है, भीरगु ऋषि जी। उस समय से ही जल रहा है? ये 1000 साल पुराना। 1000 साल से ये धुना जल रहा है, और ये कई 1000 साल भी हो सकता है। कोई ना कोई जला के रखता है जी। आज हम हैं तो कल हमारी जगह में कोई और दूसरा संत आ जाएंगे, वो तो कम से कम धुना को चेतन करके रखेंगे। और बाबा की इच्छा जैसा जिस संत को बुलाए। हाँ। और बाकी तो ये जो बनाए हैं ये हमारा ही पुरखाती का ही जमीन है, मतलब बनवाए थे हमारे दादाजी और हमारे गुरुदेव भी है वो। तो यहाँ तो फॉरेस्ट वाले सब रोक लगा दिए, तो कुछ रुक गए, बाकी तो सब चोरी करके ले गए। अच्छा, ये जो धुनी एक बार दिखाइए हम लोगों को। भृगु ऋषि का ही धुना है ये, अखंड धुनी। বন্ধুরা দেখুন, এই আগুন যাকে ধুনা বলা হয়, হাজার হাজার বছর ধরে জ্বলে চলেছে, কেউ না কেউ জ্বালিয়ে রেখেছেন। এক অদ্ভুত अत्याश्चर्य, भाबाई जाए ना। ये हजार हजार बरस से जल रहा है, कोई ना कोई जला के ही रखा है। पहले ये बाबा किए बहुत दिन तक, हमारे गुरुदेव जी जो हमारे दादाजी जब तस्वीर है सामने, ओ उन्होंने किए। जी। और ये जो घर, ये पहले नहीं था ना? हाँ, पहले नहीं था, ये तो अभी 30-35 साल पहले बने थे लकड़ी। 30-35 साल पहले बने थे। हाँ जी। विवेकानंद जी भी यहाँ पर आ चुके हैं, देखिए। और विवेकानंद जी आए थे यहाँ? हाँ, देखिए फोटो। বন্ধুরা দেখুন, স্বামী বিবেকানন্দ এখানে এসেছিলেন। আমাদের রোম হর্ষক লাগে, কত মুনি ঋষির তপস্যার ভূমিতে আমরা এসে পৌঁছেছি। और ये जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, ये भी नया है। हाँ, अभी 2-3 साल हुए। 3 साल हुए। बाकी तो ये धुना है यहाँ का पुराना। धुना ही पुराना है, धुना ही माने यहाँ का प्राचीन से प्राचीन है। बहुत। जो बाहर कुंड देखे वो प्राचीन है। अच्छा, मेरा जो फ्रेंड्स लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे, वो आदमी यहाँ आना चाहेंगे, जी। नहीं, हमारे पास रुकने का भी साधन है। रुकने का साधन है? कोई साधन करना चाहेंगे कि अकेला रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए साधना करने के लिए तो बहुत ये सब बना ही है, तपोस्थल साधने के लिए तो बना ही है सब। ये नर्मदा परिक्रमा जो करते हैं, जी जी, अभी आने वाले हैं ये अपने एकादशी के बाद यहाँ आएंगे। 400-500 लोग यहाँ पूरा मेला लगेगा। मेला लग जाएगा, तब वो उन्होंने यहाँ आते हैं। हाँ जी। उनको जो पूरा परिक्रमा का मार्ग है, हाँ, यही रास्ता है। यही रास्ता है, इसके ऊपर से ही जाते हैं। हाँ, रुद्र यहाँ से सीधे रुद्र गंगा निकल जाएंगे, फिर वहाँ से अपना क्या बोलते हैं कपिल संगम, अपना इधर से होके फिर वो जलेश्वर महादेव का। ये नॉर्थ वाला जो उत्तर तट में है, यही है ना? जी। यहाँ से आप सीधा माई की जो बगिया है वहाँ से उठाएंगे, सोनमुड़ा आएंगे, सोनमुड़ा से फिर आप ऐसा चढ़ेंगे, फिर यहाँ से आके नक्टी देवी होते, फिर भीरू कमंडल होके सीधा फिर धुनी पानी फिर उनका रुकने का स्थान नहीं है। फिर उनके बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे तो 5 किलोमीटर यहाँ से रुद्र गंगा है, फिर वहाँ पर जाके रुकते हैं। कोई आदमी आ जाए तो स्वागत। हाँ। बहुत बढ़िया, आपसे मिलने से भी मेरा बहुत तो सब आप ही लोग के आनंद आया है। भगवानी से सब आश्रम चल रहा है हमारा, से ये कुछ नहीं, बाकी तो ये है सब यही भगवान ही चला रहे हैं, जी। अपने आप चल रहा है सब कुछ। जी। और खाना पीना का भी साधन हो जाता है ना? हाँ, भगवान सब चीज सब दे देता है, हो जाता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। अपने आप ही हो जाता है। बाकी सब आप इनके जो भगत है हाँ। खुद ही दान में देके चले जाते हैं। और यहाँ आने से ही तो पूरा मतलब शांति आ जाता है, इतना खाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ तो अभी तक हमारा भोजन नहीं बना है, खाने की इच्छा नहीं। जब इनको भूख लगेगा फिर सताएंगे, फिर भोग लगाना पड़ता है, हाँ बनाना पड़ता है भोजन। फिर इनको तो एक टिक्कर चाहिए रहता है, टिक्कर, हाँ उसमें एक आधा टिक्कर बाबा को भोग लगा देते हैं। हाँ। जो भी है, बाकी जो आधा बचा हम पा लेते हैं। हाँ, टिक्कर मतलब रोटी। रोटी देते हैं। उसी को बोलते हैं टिक्कर। हाँ, टिक्कर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको, हजारों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। कुंड है तब 4। हाँ,
नहीं 5 कुंड 5 कुंड है। जी। ओ, मैं पहले देखा 3 कुंड, 3 नहीं है, जी 5 कुंड है। जी। और इसका अलग अलग कलर है पानी का। हाँ जी, अलग अलग कलर, इसलिए कि वो त्रिवेणी मैया है, हम्म। गोदावरी है, ये कावेरी है, वो नर्मदा मैया है। ओ, वो धुनी वाले बाबा का जहाँ भीरपुर ऋषि जी स्नान करते थे। हाँ, और वो अपना गंगा मैया, वहाँ चालता का झाड़ है, वहाँ गंगा मैया है। वहाँ पर भी कुंड है। हाँ, वहाँ भी कुंड है, लेकिन उनका भी जल अलग अलग कलर है, सबका सबका जल अलग अलग कलर। अलग अलग कलर। और आप बोल रहे थे कि धुनी के पानी का जो पानी है वो धुआं जैसा हो जाता है, धुआं ही जैसा रहता है उनका कलर। ऐसा हो जाता हाँ है। जी। अजीब बड़ा कहानी। नसीब वाले हैं, उनको गर्म पानी भी मिल जाता है उसमें, नसीब वाले को। हाँ, हाँ, अगर कहीं भगवान चाह लिए तो उनको गर्म पानी भी वहाँ से उपलब्ध हो जाता है। अजीब कहानी। जी, ये मतलब कब कितने समय वो पानी खौलने लग जाएंगे, जैसा हम चूल्हे में चढ़ा देते हैं वैसा खौलने लग जाते हैं पानी। अरे बाबा। वो नसीब वाले को ही दिखता है। हाँ, हमने कभी कभी देखा है, बाद में फिर हम सोचे भगवान ऐसा मत कीजिए, ऐसा करके अभी तक शांत रहते हो, हाँ, शांत रहते पूरा धुएं के ही कलर में हो जाएंगे वो, पूरा जैसे धुआं का, जैसा धुआं है पूरा, तो धुआं ही धुआं दिखेंगे पूरे। हाँ। अब ये है गोदावरी, गोदावरी, हाँ कावेरी, कावेरी का पानी एकदम अलग। अलग कलर है। वो नर्मदा मैया है, उनका अलग है। आइए देखा। नर्मदा मैया को देख के आई। বন্ধুরা, এক একটি জলের এক এক রকমের রং, 5টি কুণ্ড, 5টি নদীর যেন জলের রং যেমন আলাদা, ঠিক তেমন। দেখুন, এটি নর্মদা কুণ্ড, নর্মদা মা এই জলটির মধ্যে রয়েছেন। কি অসাধারণ দেখুন। नर्मदा कुंड, नर्मदा मैया इसमें प्रकट हुआ। जी, स्वयं नर्मदा मैया का जैसा आप जल देखते हैं वैसे ही जल है। एकदम ये जैसा ही जल है। ये जो यहाँ पर जो जंगली जानवर है, क्या क्या भल्लुक भी है। हाँ, भालू वालू का भी आते अब नहीं है, अपने पहले जैसे नहीं रह गए। अब यही बंदर वंदर सब दिखाई पड़ता है। बांदर बहुत है, बंदर बहुत है। हाँ, और जो लाल वाला वो परेशाान करते हैं। हाँ लाल वाला। हम्म, वो सामान काट देता है आदमी को। हाँ, सामान बाहर लेके आओ खाने वाने का, वैसा मत दिखाओ उनको, या तो फिर झोले वोले में बैग में लेके आओ। बाकी तो ये गैया का जल पिलाने का बनाया गया है। गैया को अभी गर्मी आ जाएगा तो इसमें जल डाल डाल के इसमें जल पिलाते हैं गैया को। गैया है यहाँ, नहीं, गैया कहीं आते हैं, आ जाता है, हाँ आ जाते हैं तो इनको जल पिलाना। घूमने घूमने आ जाता है गैया। हाँ जी, और चरवा जो हाँ, ले चरवाही लोग का है गरबा, बाकी जल पीने के यहीं आ जाते यहीं हैं। आ जाता है। जानते हैं कि यहाँ यहाँ पानी महाराज है। जी जल देते हैं। हाँ हाँ तो हाँ महाराज जी यहीं जल देते हैं गैया को। हाँ। और ये जो पानी है इसमें भी पीते हैं। हाँ जी, महाराज, ये जो पेड़ है, ये क्या पेड़ है ये सब? ये सराई का पेड़ है। सराई। हाँ जी, इससे वो निकलते हैं धुना। धुना निकलते हैं, हाँ जी, धुना, सुगंध निकलते हैं। हाँ जी, सुगंध। वो देखिए पेड़ में पूरा लगा है ऊपर। वो तो बंगाल में ये सब पेड़ नहीं दिखाई देते हैं, जी, ये खाली जंगल में मिलेगा। जंगल में ही मिलेगा। जी। सराई बोलते हैं इसको। हाँ, सराई, ये देखिए पूरा लगा है वो। ওই দেখুন জুম করে নিয়ে আসুন কাছে, ওই দেখুন এক জায়গায় ধুনি দেখা যাচ্ছে। जी, वो जो, ओ, जो गाम निकल रहे हैं ना, हाँ जी, वही धुना है। हाँ वही धुना। हाँ, वो बड़ा बड़ा निकलता धुना तब इससे ही बनते हैं। है। हाँ, इसी से बनता है। ये बड़ा बड़ा निकलता है, इतना बड़ा बड़ा निकलते हैं। हाँ, ये मोटा मोटा ऐसे। ओ, ये गाम निकलते हैं, हाँ वही गाम को आप धुनी में देते हैं ना। जी जी, उसी को धुनी में देते हैं। धुनी इसके उन्हीं के लिए धुना लिखा गया है। बाकी ये तो खुद ऑटोमेटिक गिर गिर के मिलता रहता है, हम खोज खोज के ले आते हैं कहीं से। ओ, जमीन में पड़ा रहते हैं, नहीं तो गुल्ला से मारना पड़ता है, ओ गुल्ला से मार के निकाल देते हैं। नीचे गिराना पड़ता है। বন্ধুরা, ধুনো এই গাছটি থেকেই উনি বলছেন যে উনি পেয়ে যান সুগন্ধি সরাইয়ের গাছ। আরও यहाँ पर तो बहुत सारे हाँ, पौधा है। उन्हीं का झाड़ है। और सिर्फ यहाँ सराई का ही झाड़ है। हाँ, सराई का ही झाड़ है। बाकी तो हमारे जो बगीचे में है सब आम का झाड़ है। ओ, ये आम और लीची है। লিচু আছে, আম আছে, চাল। ये आम लीची सब लगाया हुआ है। हाँ जी, कितना साल पहले लगा हुआ है? 70-75 साल पुराना अब झाड़। बहुत आम होता है। हाँ, बहुत नहीं होते, अब बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा बहुत हाँ। खाने पीने का दे देते हैं, ओ, हो जाता वही है, बहुत है। बाकी तो सब जो आते हैं उन्हीं को बांट देते हैं हम। वो सबको बांट देते हैं। हाँ। বন্ধুরা, এত সুন্দর জায়গা, জোরে কথা বলতেও খারাপ লাগে। এত অপূর্ব তপস্যার ভূমি,
কত মুনি ঋষিরা এসেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন। আপনারাও যদি অমরকণ্টকে আসেন, একান্তের এই জায়গাটি অবশ্যই আসবেন। এত আনন্দ পাবেন, এত শান্তি পাবেন, যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন না। আমরা বাঙালি মহারাজের সাথে ঘুরছি, পশ্চিমবঙ্গের অনেক কিছু ছেড়ে উনি এখানে চলে এসেছেন এবং এই শান্তির জায়গা উনি বেছে নিয়েছেন। একটা সময় মানুষ বুঝতে পারে যে অর্থের থেকেও বড় কিছু আছে, সেই সন্ধানে যুগে যুগে মানুষ ঘুরে বেরিয়েছে। আমরা এই মহারাজের কাছে এসে এত আনন্দ পেয়েছি, আপনারাও আসবেন এবং যদি মনে করেন যে এই কাজে কিছু সহযোগিতা করবেন, নিশ্চয়ই করবেন। সেটা কেমন লেগেছে জানাবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন বন্ধুরা, সুস্থ থাকবেন, ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। নর্মদে হর হর।